अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्सोलॉजी। स्टूडेंट्स, एनुअल क्लासिफिकेशन नोट्स जो कि मैंने मिलर एंड हार्ले से बनाए हैं, आज उसका लेक्चर 12 हम करेंगे जो कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा पे है। इस फाइलम के अंदर मैं आपको कंप्लीट नोट्स बताऊंगी फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आपके पास आ जाए मिलर एंड हार्ले से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसके एक नोट्स बना लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको तैयारी की ज़रूरत पड़े तो आप बुक को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये नोट्स ही आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हेल्प करेंगे कवर करने में। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, सी स्टार, सी अर्चन्स एंड सैंड डॉलर, सी क्यूकम्बर इसमें आते हैं। कैलकेरियस एंडोस्केलेटन मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ ओसिकल्स दैट अराइज फ्रॉम मेसोडर्म। एडल्ट विद पेंटारेडियल सिमेट्री, एडल्ट जो होते हैं वो पेंटारेडियल सिमेट्री होती है, एंड लार्वा विद बायलेटरल सिमेट्री। Water vascular system composed of water-filled canals used in locomotion, attachment and feeding, and their extensions are called tube feet. Complete digestive tract मौजूद होता है। Hemal system derived from coelomic cavities मौजूद होता है। Nervous system मौजूद होता है। In the echinoderm, the skeleton consists of a series of calcium carbonate plates जिन्हें ossicles कहा जाता है। Water vascular system include ring canal, usually open to outside or to the body cavity through a stone canal, and an opening called madreporite. In sea star, madreporite is a sieve-like plate. Tiedemann bodies are swelling often associated with ring canal. They are believed to be the site for the production of phagocytic cells जिन्हें coelomocytes कहते हैं. Polar vesicles are sacs that are associated with ring canal and function in fluid storage. Hemal system consists of strands of tissue that encircle an echinoderm near ring canal or water vascular system and run into each arm near radial canal. Function of hemal system is to distribute nutrients absorbed from digestive tract. सबसे पहली क्लास है एस्ट्रॉयडा जो कि स्टार शेप होते हैं। एस्ट्रॉयडा में सी स्टार एंड सी डेजीज आती हैं। एस्टेरीज इज एन ऑरेंज सी स्टार। पेंटारेडियन होती है सिमेट्री। Then they fold then fold of the body wall called dermal branchiae or papilla extended between ossicles and function in gas exchange. In some sea star, the arboreal surface has numerous pincer-like structures जिन्हें pedicellary कहते हैं, which clean body surface of debris and have protective function. A series of ossicles in arm form ambulacral groove that runs the length to oral then to arm. The larger oral stomach, sometimes called cardiac stomach, receive indigested food. जो food indigested होती है ये उसको receive करता है जिसे cardiac stomach कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है arboreal stomach, इसे phyloric stomach भी कहते हैं। Phyloric stomach give rise to duct that connect to the secretory and absorptive structure जिसे phyloric ceca कहते हैं। Two phyloric ceca फिर वो extend होते हैं हर arm के अंदर। Power of regeneration इनमें मौजूद होती है। टू गोनेड्स होते हैं जो कि हर आर्म में मौजूद होते हैं। दीज enlarge टू नियरली फिल एन आर्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड। जब रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है तो तकरीबन आर्म फिल हो जाती है रिप्रोडक्टिव टाइम पे। आफ्टर गैस्ट्रुलेशन बैंड ऑफ cilia differentiate and bilaterally symmetrical larva called bipinnarea larva forms. The development of larval arm result in branchiolaria larva which settle to substrate and metamorphosis. फॉर एग्जाम्पल सी स्टार एंड सी डेजीज इसकी एग्जाम्पल्स में आता है स्टेरॉयडा में। दूसरी क्लास है ओफिरॉयडा जो कि स्नेक टेल फॉर्म होते हैं। ब्रिटल स्टार्स एंड बास्केट स्टार्स इसकी एग्जाम्पल है। ब्रांच्ड आर्म्स मौजूद होती हैं। नीदर डर्मल ब्रैंकी नॉर पेडिसलेरिया प्रेजेंट। प्रीडेटर्स होते हैं, स्कैवेंजर्स भी होते हैं। Ammonia is the nitrogenous waste product and it's lost by diffusion across tube feet and membranous sac called bursa. Slit in oral disc near base of each arm allows cilia to move water into and out of bursa. Autonomy इनकी क्या होती है? Brittle stars is grasped by an arm, hence the common name brittle star. इनको ब्रिटल स्टार क्योंकि ब्रिटल स्टार को अगर पकड़ लिया जाता है, ब्रिटल स्टार इज ग्रेस्प्ड बाय एन आर्म, इसको हम ब्रिटल स्टार कहते हैं। Gonads are associated with each bursa and gametes are released into bursa
and fertilized embryo are protected in bursa. Larval stage is ovipositus. अब नेक्स्ट है क्लास इक्वाइनोइडा जो कि स्पाइनी फॉर्म्स होते हैं. सी अर्चन एंड सैंड डॉलर्स एंड हार्ट अर्चन ये इसकी एग्जांपल है. Their skeleton called a test consists of 10 sets of closely fitting plates that arc between oral and aboral ends. Pedicellary of some sea urchins contain venom sac and are grooved to inject venom into predators such as sea star. A chewing apparatus called Aristotle lanterns can be projected from mouth, consists of 35 ossicles cut food into small pieces. Larva is Plutus larva. नेक्स्ट है क्लास होलोथ्राइडा जिनको सी क्यूकम्बर फॉर्म कहते हैं. सी क्यूकम्बर ही इसकी एग्जाम्पल है. नो आर्म्स, एलोंगेटेड बॉडी, सेकेंडरी बायलेटरल सिमेट्री मौजूद होती है. इनमें आर्म्स नहीं होती और बॉडी एलोंगेटेड होती है. Tube feet surrounding the mouth are enlarged, highly modified, are referred to as tentacles. Larger ossicles form a calcareous ring that encircle the oral end as digestive tract. और जो oral end होता है वो as a digestive tract काम करता है. A pair of tubes called respiratory trees attach at the rectum and branch throughout the body cavity of sea cucumber. Other sea cucumbers can evert tubules of respiratory tree जिसे cuvarian कहते हैं through the anus. These tubules contain secretions or toxin to immobilize prey. Evisceration क्या होती है? Evisceration का जो term है वो क्या होती है? Contraction of body wall may result in expulsion of one or both respiratory tree. बॉडी की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती है और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी जो है एक या दोनों वो एक्सपल हो जाते हैं, बॉडी से बाहर निकलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाहर निकलता है एंड गोनेड्स. इस प्रोसेस को एविस्सरेशन कहते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. नेक्स्ट है क्लास क्राइनोइडा. क्राइनोइडा क्या है? लिली फॉर्म है, यानी कि इसकी जो शेप है फॉर्म है वो लिली की तरह होती है. इनमें सी लिलीज आती हैं या फीदर स्टार्स आते हैं. Sea lilies attach permanently to substrate by stalk and supported by sets of ossicles जिन्हें कैलेक्स कहते हैं. यानी कि ये परमानेंटली अटैच होती हैं किसी सबस्ट्रेट के साथ स्टॉक के थ्रू या इनको सपोर्ट किया जाता है ऑसिकल्स के सेट से जिन्हें कैलेक्स कहते हैं. द अनअटैच एंड इज कॉल्ड क्राउन. जो अटैच एंड होता है वो स्टॉक के थ्रू अटैच होता है और जो अनअटैच होता है उसे क्राउन कहा जाता है. गैमीट डेवलपमेंट इज प्रोटेंड्री. जो गैमीट्स की डेवलपमेंट होती है वो प्रोटेंड्री होती है यानी कि मेल फर्स्ट. थैंक यू सो मच. अगर आपको इस टॉपिक से इस फाइलम के से रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी और फाइलम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.